نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائی اور بزرگ و دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مبارک مہینہ جو آنے والا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں۔ ہر مومن کا یہ ارادہ اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے قریب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رمضان اس کا بدلہ، اس کے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رمضان کا استقبال کرنا ہوتا تو رجب سے اس کی تیاری کرتے، رجب کے مہینے میں عبادتیں شروع کر دیتے اور شعبان کے مہینے میں عبادتیں شروع کر دیتے، اور رمضان کے قریب قریب میں روزے وغیرہ جیسے کم رکھتے تاکہ فرض روزوں کے اندر کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا جیسا ایک اہم موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اب وہ کیا ہے کہ جیسے اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ 5 ہیں، جس میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزے، اور چوتھا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور پانچواں ہے حج کا ادا کرنا۔ اب اس میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ایمان یہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، کہ جب تک ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے رب ہے، ہمارے پالنہار ہے۔ دوسری چیز ہے نماز کا ادا کرنا، جو 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت ہم پر فرض کیا ہے، ہمارے لیے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم خود غور و فکر کریں کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کیا ہے، اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز ہماری ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین ہمیں ہو جائے۔ اور ایک قرآن کی آیت بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ تو ہم کو جو ہے ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، نہ کہ دور ہونا ہے۔ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جتنا ہو سکے کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جائیں گے، اور یہ گناہ سے جو ہماری ڈھال ہے روزہ، اس کو ہم پابندی سے ادا کریں گے اور سچے دل سے ادا کریں گے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ سب میں پہلے رمضان المبارک کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی؟ جس میں بتلایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس میں ایک رات دی گئی ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس کے اندر جو بندہ عبادت کرے گا تو 1000 شہر، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ 1000 راتوں کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے یہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نفل فرض کے برابر اور فرض کا گناہ 70 گنا کے برابر۔ یعنی اگر ہم ایک کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ نیکی ہماری 70 گناہ کے برابر بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طرح سے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا بھاؤ تاؤ بڑھا دیا، تو سوچو گناہ کے اعتبار سے کیا ہوگا۔ تو خیر، ہم کو
जहन्नमी बातों की तरफ नहीं जाना है, हमको जन्नती वाली बातों की तरफ जाना है, ताकि हमारा शौक, हमारी रग़बत और हमारी दिलचस्पी बढ़ती रहे। दूसरी एक बात यह है, शैतानों को इस रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही जकड़ लिया जाता है और उनको जहन्नम में डाल दिया जाता है, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से एक दरवाजा है रैयान, रोजेदारों का दरवाजा, वो भी खोल दिया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया पर आते हैं, और एक हदीस है जिसका तर्जमा ये है कि है कोई मदद चाहने वाला जिसकी मैं मदद करूं, है कोई तलब गुजार जिसकी मैं तलब को पूरा करूं, है जो रिस्क को चाहने वाला जिसकी मैं रिस्क को क्या पूरा करूं, है कोई माफी मांगने वाला, मगफिरत करने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए। तो हम खुद अपने शेड्यूल को देके, हम अपनी जिम्मेदारियों को देके, हम सहरी के लिए जब उठते हैं, हालांकि सहरी ये सुन्नत है, रोजा फर्ज है, अगर सहरी के बगैर भी अगर रोजा रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन एक सुन्नत का अदा करना जरूरी है। अब रोजे का माना है ढाल के, गुनाहों से ढाल के। कुरान की एक आयत है जिसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। और दूसरी एक हदीस है कि रोजा मेरे लिए है और मैं रोजदार के लिए अज्र देता हूँ। तो हमको खुद गौर फिक्र करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को दुनिया में भेजा है वो खालिस इबादत के लिए भेजा है, और इबादत से मुराद अल्लाह तबारक व तआला को जानना है और पहचानना है। कुरान की एक आयत है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून औ इल्ला लियअरिफून, कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए भेजा है, ताकि वो दुनिया में आए और इबादत के जरिए से अपने अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह को जाने और पहचाने। इतना हम अल्लाह को जान रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को पहचान रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कुरान के अंदर बतला दिया कि दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। हम यहाँ पर माल कमाने के लिए आए हैं। हमारी ये सोच है कि माल आएगा तो ही जरूरियात पूरी होगी, माल आएगा तो ही ख्वाहिशात पूरे होंगे, माल आएगा तो ही रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह की तमाम चीजें होगी। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी सिर्फ दुनियावी हद तक नहीं है, बल्कि आखिरत की हद के एतबार से हमको ये सोचना है कि जिस तरह से हम माल की फिक्र कर रहे हैं, तो आमाल भी हमारे लिए उतना ही बेहद जरूरी है कि दुनिया में हम माल कमाने के एतबार से आमाल की फिक्र करें। जैसा कि एक किसान खेती के अंदर दाने पिरोता है, या एक मैकेनिक टूटी फूटी गाड़ी के ऊपर मेहनत शुरू कर देता है, तो उसकी मेहनत एक दिन की नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत जो है महीनों के एतबार से है। और जब वो उसका हासिल यानी उसका रिजल्ट देखता है, वो हरियाली और उसके वो चंद दाने हजारों दानों में बदल जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि जितना हो सके हम माल के एतबार से नहीं, बल्कि आमाल के एतबार से फिक्र करें। और रमजानुल मुबारक का महीना जो आया है, ये इसी एतबार से है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आमाल हम कमाए। हम खुद गौर फिक्र करें कि हम रमजानुल मुबारक के अंदर जिस तरह से हम रहते हैं, हमारा पूरा शेड्यूल, हमारा टाइम टेबल एकदम चेंज हो जाता है। हम इस तरह से हम पूरी जिंदगी गुजारे। मोमिन के लिए बेहतर यही है कि वो पूरी जिंदगी रमजानुल मुबारक की तरह गुजारे, और जब उसकी मौत का दिन हो तो वो ईद की तरह हो। जिस तरह से ईद के दिन खुशियां मनाई जाती है, तो जो बंदा है जिसका इंतकाल हुआ है वो खुद खुशियां मनाएगा और लोग उसके पीछे रोएंगे। तो हमें आमाल को बढ़ोतरी देनी है माल के एतबार से। तो हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों को अपनी जिंदगी में लाएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। हम रमजानुल मुबारक के महीने में खूब इबादत करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुरान हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते जाएंगे। उसका एक शेड्यूल भी है, एक चार्ट भी है। इंशाअल्लाह हमारा ये रमजान मुबारक के एतबार, रोजे के मसाइल के एतबार से बाकायदा बयानात चलेंगे और मसाइल बताए जाएंगे। इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के एतबार से, इसकी फजीलत के एतबार से, इसके रोजे की अहमियत के एतबार से, रोजे के मसाइल के एतबार से। बहुत से लोग बोलते हैं इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, दवा लेने से क्या होगा, उल्टी आने से क्या होगा,
खून निकलने से क्या होगा, चक्कर आने से क्या होगा, रोजे के बहुत सारे मसाइल है। सहरी करे तो क्या होगा, सहरी नहीं करे तो क्या होगा, ये मसाइल रहते हैं। तो आप जाने, उलमा से जाने, बैठकर उनसे पूछे। जब तक हम मसले पूछेंगे नहीं, मसले बताए नहीं जाएंगे। हर एक की जिंदगी में मसाइल लगे हुए हैं। अब ये रमजान का महीना आ रहा है तो इसी एतबार से इसको हल नहीं करना है। हम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर 12 नहीं बल्कि 12,000 मसाइल है। तो हम खुद गौर फिक्र करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं, मसाइल को मालूम करना। तरह से हमारी ये नौजवान नस्ल है, ये खुद के मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि कोशिश ये करना है, ये हमारी जो मस्तूरात हैं और हमारे जो नौजवान नस्ल के जो भाई हैं, जो दुनिया में मुनहमिक हो गए हैं, जो दुनिया में गिरफ्तार हो गए हैं, इनको बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हम खुद गौर फिक्र करें कि रमजानुल मुबारक के मसाइल को हमको जानना जरूरी है या नहीं। नमाज के मसाइल हमको जानना है जरूरी नहीं। एक मसला अगर मालूम करेंगे तो 1000 रकात के बराबर इसका सवाब हमको मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, दुआओं को सीखेंगे, कुरान की आयतों को सीखेंगे और एक एक मसले को जान कर हम आलिम दीन के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, आलिम दीन के पास जाएंगे, मुफ्तियान किराम के पास जाएंगे और हम एक एक मसले को जान कर हम सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सीखना हमारा काम है, क्योंकि हर इंसान को सीखना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को जो बनाकर भेजा है वो अफजलुल बशर बनाकर भेजा है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी जानवर भेजा है, चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, जितने भी जानवर हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक मेमोरी दी है, इनको एक दिमाग दिया है, इनकी एक सोच है। जैसे ही अंडे से निकलते हैं या माँ के पेट से निकलते हैं तो ये कुछ वक्त तक लड़खड़ाते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद भूख लगने पर रोना, बिलबिलाना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी रोजी इन तक पहुंच जाती है। जैसे ये बड़े होते रहते हैं तो ये रोजी की तलाश में खुद ब खुद निकलते रहते हैं। एक चूटी की मिसाल है। चूटी वो जब जमीन में जाती है तो अपनी ग़िज़ा को लेकर जाती है। चंद कतरे होते हैं, उसके ऊपर वो 6-6 महीने निकालते हैं। चंद दाने होते हैं, वो 6-6 महीने निकालते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान महीनों के एतबार से, दिनों के एतबार से उसकी मेमोरी है। नहीं, उसको जो अफजलुल बशर बनाया गया है, उसको जो दिमाग दिया गया है, वो तमाम हैवानात से, तमाम जानदार से, तमाम चरिंदे परिंदे जितनी भी मखलूकात है, सबसे बेहतर दिमाग इंसान का है। क्योंकि इसके पास दिमाग है, सोचने की सलाहियत है, ताकत है, तब जाकर इसको अफजलुल बशर कहा गया है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि ये तो एक नापाक मनी के कतरे से बना हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अफजलुल बशर बनाया है वो इस एतबार से कि ये एक दिन की नहीं सोचता, 2 दिन की नहीं सोचता, 1 महीने की नहीं सोचता, 1 साल की नहीं, बल्कि मरने के बाद भी प्लानिंग इसके दिमाग में मौजूद है। एक परिंदा जब घर से बाहर निकलता है तो वो खाली पेट निकलता है और जब शाम में आता है तो भरे पेट आता है और अपने बच्चों के लिए रोजी लेकर आता है। वो दूसरे दिन के बारे में ग़िज़ा नहीं लेकर आता है, वो दूसरे दिन की ग़िज़ा नहीं लेकर आता है। दूसरे दिन जाएंगे तो दूसरे दिन वो फिर खाली पेट निकलता है और शाम में भरे पेट निकलता है। लेकिन इंसान इस तरह से नहीं है। इंसान 1 दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि सालों साल की प्लानिंग करते बैठता है। रोजी का जमा करना है, प्रॉपर्टीज का बनाना है, 1 कार के बजाय 2 कार लेना है, एक चीज के बजाय दूसरी चीज लेना है, एक घर के बजाय 2 घर लेना है। तो इसमें ये घिरा हुआ है। हम ये कोशिश ये करना है, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा माल के एतबार से नहीं बल्कि आमाल के एतबार से अपनी फिक्र बढ़ाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सीखना सिखाना करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हर एक कुरान को पढ़ने वाला बने। सिर्फ रमजानुल मुबारक में नहीं, हर दिन की जो शुरुआत हो वो कुरान के जरिए से हो, हर दिन की जो शुरुआत हो वो आमाल के जरिए से हो। कुरान को सीखे, समझे। अगर कोई आपके पास जानने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। आप जहां कहीं भी होंगे हम आपको इल्म सिखाने के एतबार से कोशिश जरूर करेंगे।
चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मस्तूरात हो या लड़की हो, हर एतबार से लड़कियों को लड़कियां ही पढ़ाएंगी, औरतों को औरतें ही पढ़ाएंगी और मर्द को मर्द हजरात पढ़ाएंगे। इसका बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि रोजे के अंदर बिल्कुल गुनाहों से बचना है। जिस तरह से रोजा ये दिल की सफाई का नाम है, दिल से नियत करने का नाम है, इसी तरह से आंखों का रोजा है, कान का रोजा है, मुंह का रोजा है, पूरे बदन का रोजा है। तो हमको कोशिश ये करना है कि जितना हो सके हम गुनाहों को सोचने के एतबार से बंद कर दे, आमाल के सोचने के एतबार से करे। आंखों से हम गलत काम को सोचना देखना बंद कर दे। हम जितना हो सके अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करें, अच्छी चीजों पर ध्यान दें और बुरी चीजों से अपने दिल और दिमाग को निकाल दे। कोशिश हमको ये करना है कि जितना हो सके हम अल्लाह तबारक तआला को याद करने वाले बने, जिक्र व अस्कार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान को मुबारक महीना पा लेते तो अपनी कमर को कस लेते, यानी कस लेते से मुराद ये कि वो एतिकाफ में बैठ जाते, सामने आओजारी करते, यानी अल्लाह से दुआएं मांगते और जितना हो सके अपने आप को इबादत में लगाते। तो हमको दीन और दुनिया दोनों करना है, तो उस एतबार से जितना हो सके 24 घंटे में से 8 घंटे हम कारोबार के लिए निकाले, 8 घंटे अपने घर वालों के लिए और अल्लाह के लिए निकाले और 8 घंटे हम खालिस दीन का काम करें। सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमको इन बातों के जरिए से कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस रमजान मुबारक के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक तआला से मग़फ़िरत मांगेंगे। और मग़फ़िरत कैसी मांगेंगे? दुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुका व नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार, के कलीमे तय्यबा है ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फ़िरुका, ऐ अल्लाह हम आप ही से मग़फ़िरत चाहते हैं, व नसअलुकल जन्नह आपसे जन्नत का मुतालबा करते हैं, व नऊज़ु बिका मिनन नार और जहन्नम से आपसे हम जहन्नम की पनाह मांगते हैं। जितना हो सके इन कलिमात को पढ़ना है और रोजे की सच्ची नीयत जो है वो दिल से है। रोजे अगर आप सहरी के लिए उठ रहे हैं, सहरी के लिए आप उठ रहे हैं तो ये उठना आपकी नीयत है। अगर आप सहरी कर रहे हैं तो ये सहरी ये रोजे की नीयत है, जबान से कहना काफी नहीं है। अगर आप सहरी कर रहे, बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो रात में उनका खाने का मामूल है, नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट पर रात में जागते हैं और आइन फजर के पहले वो खाते हैं या आधी रात में खाते हैं, तो वो सहरी नहीं है, वो उनका खाना है, वो उनका खाना है। तो हमको कोशिश ये करना है कि सहरी रोजे के एतबार से करना है। अगर रात में आपकी आंख लग गई और आपकी नीयत थी कि मुझे रोजा रखना है, तो रोजा ये सुन्नत है, फर्ज इससे छूट नहीं जाता। आप जोहर से पहले यानी सुबह सादिक के बाद से लेकर जवाल से पहले तक आप नियत कर सकते हैं कि हाँ कुछ खाना पीना नहीं है और ये नियत करना है कि हाँ मेरा रोजा है। अगर आप नियत नहीं करेंगे तो ये भूखे प्यासे रहने के अलावा और दूसरा कोई हल नहीं है। तो उम्मीद करना है कि हम सच्चे दिल से रोजों का एहतमाम करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, तरावीह का एहतमाम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आमाल में लगाएंगे। वजह माल में लगाने के आमाल के अंदर हम अपने आप को लगाएंगे। एक तो सीजन है, जैसे व्यापारी का एक सीजन होता है, तो वैसे मोमिनों का ये सीजन है, ईमान वालों का ये सीजन है। क्या सीजन है? रोजे के एतबार से करना है। अगर रात में आपकी आंख लग गई और आपकी नीयत थी कि मुझे रोजा रखना है, तो रोजा ये सुन्नत है, फर्ज इससे छूट नहीं जाता। आप जोहर से पहले यानी सुबह सादिक के बाद से लेकर जवाल से पहले तक आप नियत कर सकते हैं कि हाँ कुछ खाना पीना नहीं है और ये नियत करना है कि हाँ मेरा रोजा है। अगर आप नियत नहीं करेंगे तो ये भूखे प्यासे रहने के अलावा और दूसरा कोई हल नहीं है। तो उम्मीद करना है कि हम सच्चे दिल से रोजों का एहतमाम करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, तरावीह का एहतमाम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आमाल में लगाएंगे। वजह माल में लगाने के आमाल के अंदर हम अपने आप को लगाएंगे। एक तो सीजन है, जैसे व्यापारी का एक सीजन होता है, तो वैसे मोमिनों का ये सीजन है, ईमान वालों का ये सीजन है। क्या सीजन है? रमजानुल मुबारक का महीना, कि इसमें जूते चप्पल कपड़े और गहने वगैरह सस्ते होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आमाल का रेट बढ़ जाता है। अब हमको कमाना है, जैसे कमाना है वैसे कमा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें
بہت बेहद اچھی لگی ہوگی، اور اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائے اور کوشش کریں کہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ مسائل کے اعتبار سے اس پر فوکس کر رہے ہیں، دھیان دے رہے ہیں، جیسے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے اعتبار سے مسائل ہے۔ اور ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے جو بکرے والے ہیں، جو بکریاں پالتے ہیں سیزن کے اعتبار سے، بقرعید کے موقع پر پالتے ہیں، تو ان کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے چینل پر لائیو لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بکروں کے اندر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، نماز کے اندر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، روزے کی کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم ایک ایک مسئلہ سیکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک مسائل کو صحیح پہنچائے۔ اگر کوئی بھی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری رہبری اور ہماری اصلاح کرائیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔